we will discuss the osmosis and the osmotic pressure. By the help of osmotic pressure, we can also determine the molar mass of the solute. Let us discuss how we can get the molar mass of the solute by knowing the osmotic pressure of the solution. Before that, we will know what is osmosis. We have discussed diffusion. Diffusion, it means the movement of solvent molecule from a dilute solution to a concentrated solution. That is known as osmosis through semi-permeable membrane. We can say that diffusion through semi-permeable membrane is known as osmosis. We know diffusion. Diffusion means the movement of substances from its higher concentration to lower concentration. And concentration, it means we are going to relate the concentration with the solute. This is how we can define diffusion. And when diffusion occurs through the semi-permeable membrane, then that is known as osmosis. So let us know. Osmosis means when the movement of solvent molecules, from dilute solution, it means lower amount of solute to a concentrated solution which has higher amount of solute through semi-permeable membrane. This is how we can discuss osmosis. To the next, we will discuss certain basic things. Need not to confuse with the concentration. Here I have mentioned that we have the dilute solution where lower amount of solute is there, to a concentrated solution where there is higher amount of solute. In order to clear it, we will discuss certain basic things. We know when water is placed at the ground, when 1 liter of water is placed at the ground level, then it has zero potential energy. But when it is kept at some height, then it has certain potential energy, and this potential energy is due to height. What we know? The next thing what we know, that all the substances has tendency to move from its higher potential energy. Potential energy, in short, we will say it as potential. Every substance has tendency to move from its higher potential to lower potential. Suppose हम देखेंगे कि अगर वाटर है और छत पे रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हम देखेंगे कि इट इज एट सम हाइट, ग्राउंड पे वाटर रखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो हाइट पे रखा हुआ वाटर है वो साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली वो क्या करेगा, वो सीधे गिराने पे सीधे फ्लोर पे आ जाएगा. उसको कैरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हाइट पे रखा हुआ वाटर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, और जो फ्लोर पे वाटर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम है. और कभी भी कोई सब्सटेंस अपने हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल तक मूव करता है. इट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट वी हैव that
substance move from its higher potential energy to lower potential energy of its own. The next, can we say that the water capped the floor have tendency to move to certain height of its own? फ्लोर पे रखा हुआ पानी क्या स्वतः ही क्या कुछ ऊंचाई तक जा सकता है क्या? नहीं. It means the water capped the floor has lower potential energy and it will not move to higher potential energy. तो इस डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि कोई भी सब्सटेंस है तो वो अपने हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक ही आना चाहता है, लोअर से हायर नहीं जाना चाहेगा जब तक एक्सटर्नल एजेंसी से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी. अगर हमें फ्लोर से हाइट पे लेके जाना है किसी चीज को तो वी हैव टू डू सम वर्क. अब हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल में. चलिए, इट मीन्स वाटर विच वी हैव kept at the floor has lower potential energy, but when that water is kept up to some height, then it has higher potential energy. Then one more conclusion is that we have that the next one is that when we increase the height of substance, then its potential energy increases. इसका मतलब हाइट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. नेक्स्ट क्या है कंक्लूजन? जो एक्सपेरिमेंट्स हमको मिला है कि अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. जिसको हम अभी एक्सपेरिमेंटल से देखेंगे. इसका मतलब व्हेन वी ऐड सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट, then its potential energy decreases. And the third one, what we have, let us understand it by doing one activity. If we have a plastic bottle, having some water into it, and we have a straw into it, like this. We have this one. This has a rubber cork. This one is the water. Let us suppose we have this bottle having some cork into it like this. At this condition, what we have a straw here. What we have? We see that the ink or the liquid in this bottle remains here. Why? Because here, in comparison to some height like this, here we have higher potential energy, here we have lower potential energy. Therefore, this liquid will not move of its own from lower potential energy to higher potential energy. क्योंकि हमने बताया है आपको कि कभी भी कोई सब्सटेंस अपने, अगर यहाँ हम लिक्विड रखते हैं तो वो स्वतः ही ऑब्वियसली मूव करके बॉटल के बॉटम में चला जाएगा. क्यों? यहाँ हायर पोटेंशियल है और यहाँ लोअर पोटेंशियल है. हाइट के कारण हमने कहा कि हाइट अधिक है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अधिक और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम. और यहाँ कोई चीज रखेंगे तो वो ऑफ इट्स ओन इट विल मूव डाउनवर्ड एंड इट विल बी हियर, तो यहां आ जाएगा. लेकिन क्या
कोई लिक्विड इस बोतल में है और यहाँ पाइप लगी हुई, तो प्रेस स्वतः ही ऑफ इट्स ओन विदाउट प्रेसिंग क्या वो हाइट पे चला जाएगा? क्या नहीं जा सकता। तो फिर जाने के लिए तरीका क्या है? तो वी विल प्रेस इट। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेस इट, then we will see that liquids of its own will start to moving to some height. As more we press, it will move to a more height. It means हम जब इस बोतल को दबाएंगे कि देखेंगे कि इस बोतल में जो पाइप लगा हुआ है उसमें जो लिक्विड भरी हुई है अब वो मूव करने लगी ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेस करने पे इसका पोटेंशियल बढ़ने लगा और जितने हाइट तक लिक्विड जाएगी उसके इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। अगर यहां तक पहुंच गई है यानी कि प्रेशर के कारण इस बॉटल का जो पोटेंशियल है वो उस हाइट तक के पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है, तब भी वो वहां पहुंच रही है। और प्रेस करने पे अगर लिक्विड यहां पहुंच गई, ये बताता है कि प्रेशर देने से इस बोतल जो लोअर लेवल पे रखा है और ये पोजीशन इसकी पोटेंशियल अधिक है हाइट के कारण, अब प्रेशर देने से इसका पोटेंशियल बढ़ के इस हाइट के पोटेंशियल के बराबर हो चुका है। So what we conclude from this discussion that on pressurizing it, on application of pressure, the potential energy increases. Next point we have on increasing pressure. On increasing pressure, potential energy what increases? Then we have this 3 point. 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। हमने ऑस्मोसिस डिस्कस किया है और सारे पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास ये 3 पॉइंट है, इसको आपको रिमेम्बर रखना है तो ही हम सारे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जान सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कभी भी कोई लिक्विड या कोई सब्सटेंस अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ही जाएगा, अब स्वतः ही अपने आप। इसका मतलब कोई सब्सटेंस अपने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल नहीं जा सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हाइट पे रखा हुआ पानी जो है वो अपने आप ही बह के नीचे आता है, लेकिन नीचे रखा गया पानी लोअर पोटेंशियल पे जो है वो अपने आप नहीं चला जा सकता। हमें या तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करें, कैरी करें, तो एनर्जी देंगे तब जाएगा, या मोटर से। दूसरा क्या है, इसका मतलब हमने क्या देखा कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ही जाती है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कि अगर हाइट हम बढ़ाते हैं, हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हमने पढ़ा है व्हाट वी हैव दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। इफ इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब ये है कि when height increases, potential energy increases. When height increases, potential energy increases. And vice versa, it means when height decreases, potential energy decreases. तो दूसरा कंक्लूजन। तीसरा ये है कि जब कभी भी हम सॉल्यूट का एडिशन कर देते हैं तो सॉल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। अगर हमारे पास सेम हाइट पे सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, हाफ लीटर वाटर हाफ लीटर वाटर, एक में अगर हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया तो सेम हाइट पे होते हुए भी इसमें सॉल्यूट अधिक है, इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगर एनी हाउ इफ वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टू सॉल्यूशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हम देखेंगे कि यहां से हायर पोटेंशियल जहां वाटर का है वहां से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेगा। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन किया कि सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि प्रेशर में हमने डिस्कस किया कि अगर किसी सॉल्यूशन के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर के एप्लीकेशन से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। ये कंक्लूजन हमारे पास रहेंगे और इसी के बेसिस पे वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। लेट अस डिस्कस द वेरियस थिंग इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। लेट अस हैव a U-tube container like this.
we will fill this container with water. Then when we fill this container with water, then it will attain, and we have semi-permeable membrane here. This one is known as semi-permeable membrane. What is the property of the membrane? ये जो semi-permeable membrane है, this will allow only and only solvent molecule to pass through them. ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन हमने लगाया है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अपने आर पार होने देगी, सॉल्यूट नहीं जा सकता. When we fill this container with water, then in both the arm, if this one is A and if this one is B, then the water will attain the same height in both the arm. To the next, what we will do? We will add certain amount of sodium chloride into arm A, NaCl into arm A. When we will add NaCl to arm A, we have discussed, then the solute, why this attain the same height? It means here the potential of water in A is equals to potential energy of water in B. It means potential energy of A is equals to potential energy of B. Therefore, they will attain the same height. But when we add sodium chloride into it, and we have discussed that this solute will decrease the potential. जब सोडियम क्लोराइड हम इसमें ऐड करेंगे तो वो इस आर्म में जो वाटर है उसके पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, यहाँ कम हो जाएगा. तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ए में हायर हो जाएगी और यहाँ कम हो जाएगी. इट मीन्स ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज लोअर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी. This one is PEA. यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई. क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूट ऐड कर लिया और हम डिस्कस किया है कि जब सॉल्यूट का एडिशन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां पोटेंशियल अधिक है, यहां पोटेंशियल एनर्जी कम है. Then water, then the solvent molecule, not the solute, then the solvent molecule will move from its higher potential to lower potential, and in this case the level in this arm A will increase. And the movement of solvent molecule will continue till the potential of this arm will be equals to potential of this arm. सॉल्यूट के एडिशन से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और पोटेंशियल को फिर से इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए, आर्म बी से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आर्म ए में क्या करेगा? मूव करेगा. और तब तक मूव करेगा जब तक दोनों आर्म के पोटेंशियल इक्वल न हो जाए. जो मूवमेंट हो रहा है तो हम देख रहे हैं ना, ये जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है. कह सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट अधिक है और इसमें सॉल्यूट कम है. तो हम देखे है ना क्या कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. बट सॉल्यूट दूसरी कंडीशन हम मानते हैं. दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने इसमें सॉल्यूट का एडिशन किया और सॉल्यूट का एडिशन करने से क्या हुआ? सॉल्यूट के एडिशन करने से पहले हमने देखा यहां सेम लेवल है दोनों का. ये
हमने सॉल्यूट उसमें ऐड किया, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इस आर्म का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और इसका इसके तुलना में अधिक होगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसी समय हम यहां पिस्टन लगाएंगे एंड बाय द यूज ऑफ पिस्टन वी विल इंक्रीज द प्रेशर हियर। और इतना प्रेशर बढ़ाएंगे सो दैट दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू डिक्रीज इन द पोटेंशियल इन दिस आर्म विल सीज। हम जानते हैं कि इस आर्म में जो सॉल्यूट के एडिशन से पोटेंशियल डिक्रीज किया है, यहाँ पोटेंशियल अधिक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भगेगा इधर की तरफ। हमने यहाँ पिस्टन लगा के उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। इट मीन्स अब कैसे स्टॉप हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूट के एडिशन से पोटेंशियल कम हुआ लेकिन प्रेशर के एप्लीकेशन से पोटेंशियल फिर से इंक्रीज कर गया। और अगर सॉल्वेंट की मूवमेंट रुक गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो लगाया गया प्रेशर है उसके कारण पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज हुआ जितना सॉल्यूट के एडिशन से पोटेंशियल डिक्रीज किया था। तो वी कैन से इन दिस कंडीशन P इज इक्वल्स टू -5। P that means pressure, this is known as solute। नेगेटिव हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि पाई के सॉल्यूट के एडिशन से पोटेंशियल घटता है और प्रेशर के एडिशन से पोटेंशियल बढ़ता है। तो क्या हुआ, प्रेशर के एप्लीकेशन से ऑस्मोसिस क्या हो गई, सीज हो गई। दूसरा, नेक्स्ट टू दैट हम जानते हैं कि अब प्रेशर के एप्लीकेशन से इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर मोर, अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल है लेकिन अगर प्रेशर हम इस आर्म में और बढ़ाएंगे तो यहां का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा और जब पोटेंशियल बढ़ेगा देन अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड से इधर की तरफ मूव करने लगेंगे। इट मीन्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस साइड विल मूव टू दिस साइड एंड दिस इज टर्म्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रेशर greater than the osmotic pressure, then the solvent molecules will move from this what we can say concentrated solution to dilute solution. On application of higher pressure, this process in this we have seen that the osmosis is in this direction, but on application of pressure it is reverse. Therefore, it is known as reverse osmosis. What we observe here that we are going to define osmotic pressure.